differential equation, first order linear differential equation of first degree first, and then in this unit also we will study about first order and higher degree differential equation. Okay, so first of all, 3 points are there: exact differential equation, linear differential equation, Bernoulli equation. They are first order and first degree differential equation. Okay, so exact differential equation. First of all, we will discuss about exact differential equation. Today, exact differential equation, linear differential equation, and Bernoulli equation. We will discuss about these 3. Very simple. You know, differential equation means what? What is the differential equation? Differential equation means an equation involving derivatives and its derivatives and independent variable and dependent variable. That means a linear differential equation. Differential equation is what? Differential equation is a relation between dy by dx, y and x. Generally for understanding, because देखो यहाँ समझाऊंगा मेन है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है यही पर देखना है बस. बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत ही सिलेक्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स में रखा हुआ है. बहुत पहले बहुत सारा कोर्स होता था, बट अभी ओनली सिंपल लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर, एंड हायर ऑर्डर वाला भी है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी गेट ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, हाउ कैन वी सॉल्व इट? ओके, सो सॉल्व कैसे करना है डिफरेंशियल इक्वेशन? सॉल्व मीन्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. दिस इज व्हाट राइट वी राइट f function of this means a relation between dy by ds, y and x. That is, whenever we write y equals to fx, generally our notation is this. That is, here y is dependent function variable, x is independent variable, y is function of x. When we suppose y is dependent variable, x is independent variable, then derivatives are like this: dy upon dx, d2y upon dx square, dq y upon dx square, x cube, and so on. These are the derivatives of dependent variable with respect to independent variable. This is only first order and first degree. This is first order and first degree. Order first है, degree भी इसका power. Degree means power of इसका ये first order and first degree. This is first, second order, third order, and degree decide होता है. You know also how can you decide the degree? The degree of the highest order derivative is present in differential equation is known as degree. So here first order first degree means ये dy by dx रहेगा, साथ में x भी रहेगा, y भी रहेगा. That means ये relation between what? x, y, dy by dx. Here y is dependent, x is independent. So this relation that means this is equals to 0. Involving these 3 quantity, if we have a, then we can say that this is differential equation in y. y में differential equation है, y dependent है. And linear, when we say that this is linear differential equation. Linear differential equation means in equation derivative, that is y dependent variable, dy upon ds derivatives of dependent variable, they should occur in only first degree and not multiplied together. मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, उसमें y का और dy by dx का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए. इन लोगों का डिग्री मींस dy by dx, इसका जो पावर है वो भी 1 होना चाहिए, और y का भी डिग्री जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिग्री है वो भी 1 होना चाहिए. देन वी कैन से दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. Okay, just like this, x dy upon dx plus y equals to 5. This is differential equation. Here x is multiplied with dy by dx, maybe y power 1, dy by dx degree 1. So this is linear differential equation of first order first degree. So solution. Also, you know, the solution of differential equation means what? The value of y in terms of x. Here y is dependent variable, because this differential equation in y. So its solution will be y equals to some function of x with constant. General solution. And particular solution, we give some value to constant, then particular solution we can get. Okay, so its solution is a relation between x and y also. That is value of y. Its solution is known as also primitive solution. From its solution we can
find direct differential equation. We know y equal to mx. Suppose y equals to mx. Okay, from this equation, that is y is the value of y is mx. Okay, if y is dependent variable, then we can make a differential equation by differentiating it. That is, for that differential equation, it will be solution. It is primitive. So differential equation for finding solution, that means if we can get a differential equation from its primitive, that is differential equation. Here exact differential, because you know differential equation can be solved by using कौन कौन सा मेथड जानते हो? 12th क्लास में पढ़े हैं मेथड. टेल मी anyone याद है differential equation? Because this is not very beginning, because you know about differential equation. फर्स्ट कैसे सॉल्व करते थे differential equation को? हेलो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का differential equation 12th क्लास में पढ़े ना? Variable or separable form, homogeneous differential equation, linear differential equation, you know ना? हेलो. Yes sir. हाँ, तो अब क्या है, सेपरेबल फॉर्म में क्या होता था? डेरिवेटिव की वैल्यू, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन एक सॉल्यूशन से प्रिमिटिव से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो डिफरेंशिएट करते हैं तो बन जाता है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, because in any type of practical, any type of situation, we get a relation between derivatives and its dependent and independent variable. So for solution, for finding solution, it is very very important to know the method of how can we find the solution. So dy by dx generally क्या करते थे? dy by dx equals to separable form होता था. separable form होने का मतलब क्या होता था? एक x का फंक्शन और y का फंक्शन वो सेपरेट हो जाता था. y वाले फंक्शन को y के साथ, इस वाले फंक्शन को x के साथ, जैसे ये f2 y dy इक्वल्स टू f1x dx कर दिए, और फिर क्या करते थे? सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट कर दिए, इधर इंटीग्रेट इधर एक कांस्टेंट लगा देते थे. बस अब इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया, जो भी रिलेशन आया विद वन कांस्टेंट, बिकॉज हियर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो फर्स्ट वन कांस्टेंट मिलेगा, सेकंड ऑर्डर तो दो कांस्टेंट मिलता है. सो बस ये सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन सॉल्यूशन आ गया. ये सेपरेबल फॉर्म था. सेपरेट है तो सेपरेट कर दिया, एक x का y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. ओके, अब ये सेपरेबल अगर नहीं होता है तो फंक्शन ऑफ, और ये दोनों मिक्सिंग फंक्शन रहता है, मिक्सिंग फंक्शन, दैट इज दिस फंक्शन ऑफ x y आल्सो एंड दिस इज f2 फंक्शन ऑफ x y आल्सो, मींस ये मिक्स है, सेपरेट नहीं कर सकते. सो इस टाइप का अगर होता है तो इसको फिर कैसे टेस्ट करते थे? फिर सॉल्यूशन करने के लिए क्या ट्राई करते थे? होमोजेनियस है कि नहीं, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई और फंक्शन ऑफ एक्स वाई. सो हियर होमोजेनियस, ये रिलेशन जो भी है, रिलेशन जो भी है, दे आर होमोजेनियस और नॉट, ये ट्राई करते थे. तो होमोजेनियस होने के लिए क्या होता था? होमोजेनियस मींस लाइक दिस, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये दिस इज होमोजेनियस रिलेशन, बिकॉज ये टोटल डिग्री 2 है, टोटल ये डिग्री 2 है. और अगर ऐसा कर दिया जाए तो इट इज नॉट होमोजेनियस रिलेशन. होमोजेनियस मींस डिग्री, जो इस टर्म हैविंग डिग्री सेम डिग्री. तो यहाँ पर इसका 1, इसका 1, 2, ये 2 और यहाँ 1, सो होमोजेनियस नहीं है. अगर होमोजेनियस बनाना है तो ऐसा होगा, ये होमोजेनियस होता है. ये होमोजेनियस रिलेशन होता है. अगर ये भी अगर होमोजेनियस रिलेशन मिला है साइड, तो क्या करते थे? क्या मेथड था? y इक्वल टू vx, ये सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते थे ना. हेलो, यस सर. किसी को याद आ रहा है? ये सब्स्टिट्यूट करो, फिर सॉल्व करो, फिर हो जाता था. दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन. ओके, फिर लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करना सीखे थे. थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या होता था? dy upon dx py equals to q, या p and q are a function of x, a linear equation in y. सिमिलरली लीनियर इक्वेशन x भी कर सकते हैं. यहाँ x और यहाँ x करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ y अलोन. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है. ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं. ओके, तो नाउ ये तो स्टेप है. ओके, कोई भी सब स्टेप फेल हो जाता है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टेस्ट करते हैं. अब एग्जैक्टनेस के बारे में ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगना है. लीनियर और बर्नौली तो सेम है. ओके, सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मींस क्या होता है? अगर ये सब मेथड फेल हो जाता है सॉल्व करने में, सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मींस if we can get a differential equation by direct differentiation of a relation between x and y. मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव को डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट
डायरेक्ट अगर क्या करे, प्रिमिटिव को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करे और क्या मिल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। एक रिलेशन है जिसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करे और क्या मिल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। पहले क्या करते थे, जैसे y इक्वल्स टू mx, ये इससे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होता है तो क्या करते थे, पहले इसको डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, फिर क्या हुआ, dy अपॉन dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको वन टाइम, सो इधर क्या हो जाएगा m। अब यहां से क्या करते हैं, m की वैल्यू निकाले, y बाई x, इस वैल्यू को रख दिया इसमें m की जगह पे, जैसे m की जगह वो वैल्यू को रख दिया y बाई x, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, x dy upon dx minus y equals to 0, this is differential equation। so this differential equation find out by दो प्रोसेस करना पड़ा, फर्स्ट तो डिफरेंशिएट किया, फिर एक बार यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, और भी प्रोसीजर आता है। अगर यहाँ पर दो कांस्टेंट है तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 2-3 इक्वेशन बन जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बाद में एक रिलेशन मिलता है, ये कांस्टेंट को हटा देते हैं और क्या मिल जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द प्रोसेस फॉर फ्रॉम प्रिमिटिव यू कैन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये प्रोसेस होता है। बट इफ वी कैन डायरेक्ट डिफरेंशिएट मीन्स ये जो प्रिमिटिव है, ऐसा रिलेशन हमको दिख रहा है जिसको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है और डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। मतलब वी कैन राइट डिफरेंशिएशन ऑफ, वी कैन राइट dy dx ऑफ सम रिलेशन इज देयर इक्वल्स टू सम वैल्यू, जो भी है, अगर कांस्टेंट है, 0 है, जो भी है, अगर ये डिफरेंशिएशन है, मतलब एक रिलेशन है जिसको अगर डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करें और इक्वेशन मिल जाए। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन which can be find by direct differentiating ये relation between dependent and independent variable। okay, so generally we are writing differential equation। differential equation को हम कैसे लिखेंगे अभी आगे, ऐसा m dx and dy equals to 0। generally we are writing for exact differential equation m dx plus m dy equals to 0, this is the standard form। same thing, ये यही है जो dy upon dx लिखते हैं ना, फंक्शन dy upon dx equals to फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, so we can write dy by dx equal to something। यहाँ पर अगर ऊपर फंक्शन आ जाए f1 xy और नीचे फंक्शन आएगा xy, ये होमोजेनियस नहीं है। अपन होमोजेनियस होता है तो सॉल्व हो जाता है, अगर होमोजेनियस नहीं है तो कुछ और भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। और इस पूरे को अगर इसके साथ ले आओगे y के साथ, इस पूरे का अगर इसको x के साथ ले आओगे तो क्या होगा, f1 dx और राइट साइड में होगा f2 dy। अब इसको इधर ले आया, माइनस कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, ये माइनस को इसके साथ रख लिया, इसको n बना दिया, इसको m बना दिया, m dx plus n dy। so any फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज m dx plus n dy equals to 0, इस फॉर्म में लिख सकते। Now we know that exact differential equation can be found by direct differentiation। means ये differential equation एक relation को differentiate करेंगे डायरेक्ट तो ये मिल जाएगा। और कैसा, relation between x और y को differentiate करने से आना है। तो यहाँ पर ना फर्स्ट एक relation ले रहा हूँ, exact differential equation, you know exact differential equation means what, this is equation is an exact differential equation if we can find it by direct differentiation of a relation between x and y, or we can say relation between x and y, that is function, ये भी लिख सकते हैं। इधर अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इधर भी ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, दैट मींस व्हाट, वही रिलेशन बिटवीन x and y, u लिखा हूं, u इज रिलेशन बिटवीन x and y, u यूज करेंगे, f भी यूज कर सकते हैं, x y रिलेशन बिटवीन x and y। so ये एक रिलेशन है और सॉल्यूशन जो है हमेशा x and y का रिलेशन होता है, तो x and y का रिलेशन वी कैन राइट लाइक दिस। सो इसका ये अगर एग्जैक्ट है, सो इट कैन बी फाइंड फ्रॉम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस रिलेशन। मतलब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, ये मिल जाएगा, ये होता है
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा है तो अब देखो, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अगर ये अगर एग्जैक्ट हुआ, ये अगर एग्जैक्ट हुआ तो इसको कैसे लिख सकते हैं? डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इक्वल्स टू mdx प्लस ndy, बिकॉज ये मिलेगा अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे इस रिलेशन का, किसका? u का. ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा. इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, दैट इज मेन थिंग फॉर दिस. Okay, so the necessary and sufficient condition for the differential equation mdx plus ndy equals to 0 to be exact if is del m by del y equals to del n by del x. सबको दिख रहा है ना? हेलो, Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये क्वेश्चन, दिस इज ए थ्योरम बट इट इज आल्सो ए क्वेश्चन. यू कैन सपोज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? mdx plus ndy equals to 0 एंड कंडीशन क्या है? del m by del y equals to del n by del x. necessary and sufficient condition means if differential equation is exact then we can get del m by del y equal to del n by del x. And if for this differential equation del m by del y equals to del n by del x, then we can prove that equation is exact. Both sides can be imply. First side implies second side and second side implies first side. क्लियर है ना? तो ये इसको एज ए क्वेश्चन लेना है, इसको सॉल्व करते हैं पहले. फिर क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल रहता है, इजी रहता है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज नेसेसरी. कंडीशन इज नेसेसरी. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यू नो क्या होता है? देखो, यहां कोई रिजल्ट है और यहां पर कोई कंडीशन है. क्लियर है? ये सपोज ये है, ये बी है. ये रिजल्ट अगर ट्रू है और इससे अगर हमको ये कंडीशन मिल जाए, दैट इज वी कैन से दैट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर दिस रिजल्ट. नेसेसरी, इस रिजल्ट के लिए कंडीशन नेसेसरी है, मीन्स रिजल्ट सही है तो कंडीशन मिल जाएगा. एंड फिर इसका रिवर्स आएगा, मतलब कंडीशन को अगर सपोज कर लेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा. ये दोनों मिलके क्या बनता है? बोथ इंप्लाइज. इधर सही है तो इधर मिलेगा, इधर सही है तो इधर मिलेगा. दैट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. तो इधर हमारा एग्जैक्टनेस है, इधर क्या है? हमारा एग्जैक्टनेस है. इधर क्या है? कंडीशन है, del m by del y upon del n by del x. सो एग्जैक्ट सपोज करेंगे तो वो मिलेगा. अगर ये सपोज करेंगे इक्वेशन के लिए तो एग्जैक्टनेस मिलेगा. एग्जैक्टनेस मिलने का मीनिंग ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन. ओके, सो ये है इसका नेसेसरी कंडीशन का मीनिंग. ओके, नाउ कंडीशन इज नेसेसरी मींस इफ इक्वेशन इज एग्जैक्ट देन वी कैन फाइंड द कंडीशन. So condition is necessary. So that means let क्या सपोज करना पड़ेगा? इक्वेशन एग्जैक्ट. Let mdx plus ndy equals to 0 is exact. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट सपोज कर लिया. देन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट मीन्स व्हाट? ये जो लेफ्ट साइड है इट कैन बी रिटन एज ए डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन of xy. then we can write क्या लिख सकते हैं? mdx plus ndy equals to d of u, where u is शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, और just write u is a some function of x and y. ये एग्जैक्ट है, इसलिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन u लिख सकते हैं, और where u इज फंक्शन ऑफ x एंड y. अब u इज फंक्शन ऑफ x एंड y,
दैट मीन्स बाय यूजिंग टोटल डिफरेंशियल, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, सिंस u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। याद आ रहा है, फर्स्ट सम में बताया था टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला व्हेन u इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। हेलो, यस सर। इसकी वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं, तो ये ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि u फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, एग्जैक्ट है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू ये ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब ये दोनों साइड कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, on comparing both sides we get m equals to क्या होगा और n equals to क्या होगा, कंपेयर कर रहे हैं इस साइड को और उस साइड को, तो m की वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स, और ये डेल यू बाई डेल वाई, ये है डेल यू बाई डेल एक्स ना, दिस इज डेल यू बाई डेल एक्स, दिस इज डेल यू बाई डेल वाई, ये कंपेयर किया। अब प्रूफ क्या करना है, एग्जैक्ट सपोज किया तो प्रूफ करना है डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स। सो m मिला n मिला, m को y के रेस्पेक्टिव पार्शियल डिफरेंशिएट करो, डेल m अपॉन डेल y, y के रेस्पेक्ट में, तो इधर भी y के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट होगा, डेल टू u अपॉन डेल y डेल x, फिर यहां से निकाले डेल n बाई डेल x, ये भी जरूरत है ना, डेल n बाई डेल x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, सो क्या बनेगा, डेल टू यू अपॉन डेल x डेल y। दिस टू क्वांटिटी इन जनरल वी आर सपोजिंग दैट इक्वल, इन जनरल इसको हम इक्वल सपोज करते हैं, बट ऑलवेज नहीं होता है, बट इन जनरल इस सपोज करते हैं कि इक्वल है, डेल टू यू अपॉन डेल y डेल x डेल x डेल y, ओके। बट in general we suppose that del 2u upon del x del y equals to del 2u upon del y del x, second order derivative है, first x and then y, first y and then x, ये तो इक्वल इन जनरल we suppose that। अगर ऐसा सपोज करें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, देयर वी गेट डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x, ये मिल गया कंडीशन। हमने सपोज किया था इक्वेशन एग्जैक्ट है और कंडीशन मिल गया डेल m बाई डेल y इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x, ये एग्जैक्टनेस के कारण हुआ है, ओके। ये दैट इज कंडीशन इज implies condition is necessary, कंडीशन इज नेसेसरी का मीनिंग ये है कि रिजल्ट है एग्जैक्टनेस, कंडीशन मिल जाएगा, दैट इज कंडीशन इज नेसेसरी, ओके। नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट, कंडीशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट मींस फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन we suppose that this is equal and then prove that this is exact, okay। so condition is sufficient prove करना है अभी, condition is sufficient, okay, condition is sufficient, condition is sufficient prove करने के लिए क्या करना पड़ेगा, exactness prove करना है। exactness prove करने का मीनिंग है कि this is equals to this, means एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि दिस इज इक्वल्स टू डी ऑफ सम फंक्शन, ये प्रूव करना है और सपोज करना है कि डेल m बाई डेल y इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x। सो हियर लेट फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डेल m बाई डेल y इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x, सपोज कर लिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये इक्वल है, क्लियर है,
then we have to show that, क्या शो करना पड़ेगा कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, इक्वेशन एग्जैक्ट, सो दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इधर तो 0 है, इधर का जो पार्ट है उसको डी ऑफ सम फंक्शन, मतलब डी ऑफ सम फंक्शन के फॉर्म में इस लेफ्ट साइड को लिख सकते हैं, ये हमको प्रूव करना है और वही से सॉल्यूशन निकलेगा इसका। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं, यहां पर भी है ना, ये हो गया लेट। देन अब इसके लिए क्या करना है, अभी इसके लिए टेक्निक ढूंढना है, वही प्रूव है, स्टैंडर्ड प्रूफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एग्जैक्टनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन डायरेक्टली थ्रू ये फॉर्मूला। डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट एक फॉर्मूला से सॉल्यूशन आ जाता है अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो। ओके, सो ये सपोज कर लिया, ये सपोजिशन में है, ये है सपोज किया हुआ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर प्रूफ, फॉर मिस अभी स्टार्ट कर रहा हूं इसके लिए ना, लेट इंटीग्रेशन एम डीएक्स इक्वल्स टू यू, हम स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज एम इक्वेशन में गिवन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, एम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, और वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। वाई को क्या ट्रीट कर रहे हैं? एज ए कांस्टेंट। तो एम इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उसमें वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट। क्लियर? जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसमें तो वाई को क्या ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट, और फिर ये इसमें x है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और फंक्शन ऑफ ये क्या होगा फिर? अगर सपोज m में x y है, y को कांस्टेंट ट्रीट किया और इंटीग्रेट किया तो u जो होगा, u इज आल्सो फंक्शन ऑफ x y, होना है कि नहीं? y तो रहेगा ही इसमें, साथ में x में x का इंटीग्रेशन होगा, जो भी मिलेगा x y बोथ रहेगा, इसमें दोनों रहेगा। सो ऐसा सपोज कर सकते हैं ना, बिकॉज ये तो गिवन है, इस क्वांटिटी को हमने सपोज कर लिया u है। सो u क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा कि नहीं होगा? बताओ। हेलो, ये मेन पार्ट है, यही से स्टार्ट होता है। हेलो, कोई ना कोई बताओ क्या बोल रहा हूं। ये फंक्शन है एक्स वाई का, वाई को कांस्टेंट जैसा सपोज करके एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो जो मिलेगा वो एक्स वाई का फंक्शन ही होगा ना। यस सर। तो इस चीज को इसको हमने क्या सपोज कर लिया? u, इसको सपोज कर लिया हमने u, तो u तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना है ना। ऐसे ही तो होगा ना, u लिखा है, मैंने u सपोज किया है, तो जनरली ये नहीं लिखते हैं ये, ठीक है, बट इट इज क्लियर दैट ना इसकी वैल्यू u है, u मींस एक्स वाई का फंक्शन होगा। ओके, हमने ये सपोज किया, लेट दिस इज इक्वल्स टू u। देन टारगेट क्या है? एग्जैक्ट बताना है उसको, इसको डी ऑफ समथिंग लिखना है, अब सब हो जाएगा इसको यूज करेंगे तो। ओके, ये एक इंटीग्रेशन है, ये u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू u है। देन इसको डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये जो हमने सपोज किया ना, इसके दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। देन डेल बाय डेल x इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट इज इक्वल्स टू डेल u बाय डेल x। क्या किया हमने? दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, इसको सपोज किया, फिर इसी के दोनों तरफ x से इंटीग्रेट किया। सो इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन, नहीं सॉरी डिफरेंशिएशन, क्या होगा? ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y तो कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म, तो m इक्वल्स टू क्या मिला? डेल u बाई डेल x, m इक्वल्स टू डेल u बाई डेल x। अब m इक्वल्स टू डेल u बाई डेल x, सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में?
वाई के रेस्पेक्ट में। सो क्या मिल गया, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये सपोज किया, डिफरेंशिएट किया, ये मिला, इसको y के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, एंड इन जनरल वी सपोज दैट ये क्वांटिटी यहाँ xy वाला क्वांटिटी के इक्वल होता है। बट आल्सो इट इज गिवन, यहाँ पर गिवन है ना कि डेल m बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल n बाई डेल एक्स, ये गिवन है, ये गिवन है, तो इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर डेल m बाई डेल वाई की जगह पर डेल n बाई डेल एक्स, इट इज गिवन। सो डेल n बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम ये लिख दे रहे हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये वाई एक्स था और एक्स वाई लिख दिया बिकॉज इन जनरल ये दोनों इक्वल होता है, और डेल एन बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये गिवन है। क्या लिख देना है, सिंस डेल एन बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स इट इज गिवन, एंड ये भी लिख देना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये लिख देना है और ये बना देना है। ये बनाने का टारगेट है कि हमको n निकालना है, पहले m निकाला फिर n निकालना है, इसका यूज किया अभी यहाँ पर। अब n निकालना है, n की वैल्यू चाहिए, तो ये डेल बाय डेल एक्स, फर्स्ट डेल बाय डेल एक्स, सो यू कैन सी हियर डेल बाय डेल एक्स ऑफ n इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल u अपॉन डेल y। ये वाला लाइन समझ में आया, डेल बाय डेल एक्स n का है, और यहां पर डेल बाय डेल एक्स को इधर लिखाऊं तो यहां डेल u बाय डेल y होगा ना, मतलब ये x के रेस्पेक्ट में इधर है, x के रेस्पेक्ट में इधर है, तो ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। टारगेट क्या है, n की वैल्यू निकालना। अब ये डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू n पार्शियली, सो इंटीग्रेट करो। अब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बिकॉज ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म, तो n की वैल्यू आ जाएगा। सो इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, बट y ट्रीट एज ए कांस्टेंट। ओके, इस लाइन के बाद आफ्टर दिस लाइन क्या लिखना है, यहां मिटा दे रहा हूं मैं, इंटीग्रेटिंग with respect to x taking y as constant। we get n equals to, चलो अब तुम लोग बताओ क्या होना है। हेलो, क्या कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, सो इधर क्या होगा, n मिलेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी ये x वाला, और इंटीग्रेशन खत्म, डेल u बाय डेल y मिलेगा। y को क्या लिया था, कांस्टेंट, तो ये जो दोनों तरफ इंटीग्रेशन होने से एक कांस्टेंट प्लस होता है ऑलवेज, है ना, जैसे सेपरेबल फॉर्म करते हैं ना, इधर इंटीग्रेशन प्लस c हो जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। सो यहां पर क्या होगा, प्लस एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा ये, बट कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट, नॉट प्योर कांस्टेंट, बिकॉज हमने y को क्या ट्रीट किया, कांस्टेंट। सो इस कांस्टेंट के अंदर y भी हो सकता है, इस कांस्टेंट के अंदर क्या हो सकता है, y मींस cy ना लिख के हम इसको लिख देते हैं फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y, ये कांस्टेंट है ड्यूरिंग दिस इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है बिकॉज y भी कांस्टेंट में आता है, तो कांस्टेंट मींस कांस्टेंट के अंदर y भी हो सकता है, बिकॉज y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया, सो कांस्टेंट की जगह पे हमने फंक्शन ऑफ y अलोन, केवल y का फंक्शन लिखा, ओके, फंक्शन ऑफ y लिखा। सो ये मिल गया, n की वैल्यू ये मिला, और m की वैल्यू ये मिला, ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। क्लियर है। अब अपना जो टारगेट है वो दिखाना है, इसको एग्जैक्ट दिखाना है, एग्जैक्ट मत डी ऑफ समथिंग इसको दिखाना है। क्लियर है। सो इसके लिए स्टार्ट करें, अभी ये n की वैल्यू है, सो n की वैल्यू को यहां लिख के रख दे रहा हूं ना, n इक्वल्स टू क्या मिला, डेल u अपॉन डेल y प्लस एफ वाई। सी यार एक चीज ध्यान देना है, ये एफ वाई मीन्स व्हाट, इसमें x नहीं है, इसमें क्या नहीं है,
x नहीं है, ये ओनली y का फंक्शन है। यहाँ कांस्टेंट ट्रीट किया था तो ये आया था, बट फंक्शन ऑफ y है। क्लियर है? y ऑफ y। अब हमारा जो टारगेट है कि इसको एग्जैक्ट दिखाना है वो दिखेगा। mn निकाल लिया ना, m dx प्लस n dy, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी एग्जैक्ट दिखाना है। एग्जैक्ट मतलब d ऑफ सम फंक्शन। ओके, सो ये दिखाने के लिए अभी इस mn का यूज करना है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू m dx प्लस n dy इक्वल्स टू m के जगह पे वो वैल्यू रख देते हैं, डेल u अपॉन डेल x प्लस dx भी है साथ में, dx प्लस n के प्लस पे वो वैल्यू रख देते हैं, जो है डेल u अपॉन डेल y प्लस fy, ये n की प्लस पे, और यहाँ पर dy, mn की वैल्यू रख दिया। ओके, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, जस्ट dy दोनों के साथ आएगा, डेल u बाई डेल x dx प्लस डेल u बाई डेल y dy, इसको एक साथ रख देते हैं। मतलब ये जब ये dy का इंटू होगा यहाँ पर, इनको एक साथ, प्लस fy dy, fy dy, ये मिला। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको this is total differential of u du, this is total differential of u, ये del u by del s dx, del u by del y dy, and इसको differential of इंटीग्रेशन ऑफ fy dy लिख सकते हैं कि नहीं। कोई क्वांटिटी है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों लगा दिया तो दोनों खत्म, वही क्वांटिटी रहेगा ना। सो क्या किया, इसके सामने इंटीग्रेशन साइन लगा के सामने डी लगा दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहां डी है यहां डी है, इसको बाहर कर दिया। अब क्या मिला, u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy, ये d है ये d है, ये बाहर आ गया, u प्लस दिस विथ इंटीग्रल साइन। सो d ऑफ दिस, ये जो पूरा क्वांटिटी है, दिस इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ दिस, मतलब वही बताया था, इसको एग्जैक्ट होना है। एग्जैक्ट होने का मतलब दिस कैन बी रिटेन एज d ऑफ सम फंक्शन, d ऑफ सम फंक्शन। सो वही है, इस ये क्या आ गया, d ऑफ सम फंक्शन। ये क्या था, xy का फंक्शन है, ये भी y है, तो ये भी मिक्स हो जाएगा तो xy का फंक्शन है। अल्टीमेटली टोटल इज अ फंक्शन ऑफ xy। So this is equals to d of this, that means equation is exact, because right side तो 0 है, so left side d of something, कोई function है xy का, equals to 0, तो exact equation हो गया। So this is equals to this, implies m dx plus n dy equals to this, which implies m dx plus n dy equals to 0 is एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये सपोज करने से एग्जैक्ट भी प्रूव हो जाता है। सो और थ्योरम और क्वेश्चन इज प्रूव्ड, सफिशिएंट भी हो गया कंडीशन। सो अब क्या हुआ कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखना है, और इसको एग्जैक्ट होने के लिए हमको टेस्टिंग क्या करना है, बस इसको भर देना है। del m by del y equals to del n by del x है कि नहीं, अगर ये प्रूफ, ये अगर सही है, दिस होल्ड्स, देन वी कैन से दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और अगर एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, यही से लिखेंगे सॉल्यूशन। अभी इसकी वैल्यू क्या होता है, ये होता है। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो ये अगर इसके जगह पे अगर ये लिखे तो सॉल्यूशन डायरेक्ट वी कैन, बिकॉज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन get its solution by direct integration. So ये तो प्रूव हो गया था। अभी सॉल्यूशन कम कैसे आया, क्या बोले, हेलो एक बार बताइए, कौन सा हेलो, इंटीग्रेशन का साइन कैसे आया, कहाँ पर यहाँ पर u प्लस सब ऊपर वाला। पहले क्या लिखा था,
यहां पर ये लिखा था ना, एफ वाई डी वाई लिखा था ना। यस सर। अब यहां पर एक क्वांटिटी लिखा हुआ है, ये जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, ये डिफरेंशियल के साथ लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज हो रहा है। बट ये है कि फंक्शन ऑफ, ये तो y से रिलेटेड है और y का डिफरेंशियल लिखा हुआ है। बट ये जो टोटल क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के आगे हम इंटीग्रल भी लगा रहे हैं, डी भी लगा रहे हैं, ये दोनों ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अब ये डी के नीचे कुछ लिख नहीं रहा हूं, ना x ना y, बिकॉज ये जब टोटल डिफरेंशियल की बात होती है केवल हम लोग डी लिख देते हैं, बट इसमें दोनों आ रहता है ना, x भी रहता है y भी रहता है। सो यहां पर क्या हो रहा है, ये एनी क्वांटिटी, जो भी कुछ क्वांटिटी लिखा हुआ है, उसके सामने इंटीग्रल भी लगा रहा हूं, डिफरेंशियल भी लगा रहा हूं। अब क्या डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों मिलके क्या हो जाता है, यहां पर पार्शियली भी चल रहा है। ये जो डी करते हैं कि x के रेस्पेक्ट में कि y के रेस्पेक्ट में, ये इंटीग्रेट करते हैं कि x के रेस्पेक्ट में कि y के रेस्पेक्ट में, या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे से जब मिलता है तो खत्म हो जाता है, यही तो बचेगा। इस चीज को हमने ऐसा करके इसलिए लिखा कि डी ऑफ समथिंग हो गया। अब डी ऑफ ये करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, बट डी तो मिल गया ना, सो फिर क्या है, डी आया यहाँ पर, डी ऑफ दिस करके लिखा। अब डी यहाँ भी डी ऑफ दिस, तो डी को बाहर कर दिया और अंदर इसको लिख दिया, तो डी ऑफ फंक्शन, ये भी फंक्शन है, एक्स वाई की भी फंक्शन है, ये टोटल। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू डी ऑफ दिस मींस एग्जैक्ट, वही एग्जैक्टनेस का प्रूफ था। अब यहां से सॉल्यूशन निकलेगा, फॉर्मूला, जैसे लीनियर इक्वेशन में फॉर्मूला आता है ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फॉर्मूला है, आईएफ निकालो और ये करो, वही है यहाँ भी एक फॉर्मूला बनेगा। इसी फॉर्मूला का तो यूज करना है सॉल्यूशन निकालने के लिए। सो फॉर्मूला आता कैसे है ये देखना है अभी। सो यहाँ पर हमको क्या मिला, इसकी वैल्यू मिला डी ऑफ, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन इसकी वैल्यू मिला डी ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। मतलब इसकी जो वैल्यू है ये मिला ना, तो इसकी जगह पे ये आ गया। अब ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डायरेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इट्स सॉल्यूशन कैन बी फाइंड बाय डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों तरफ, जैसे इंटीग्रेशन किया तो डी खत्म, तो क्या बचा u प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई इक्वल्स टू राइट साइड में कांस्टेंट, ये है सॉल्यूशन। बट u किसको सपोज किया था बिगिनिंग में, स्टार्ट में, याद करो, e y कांस्टेंट m dx, ये था y, u की जो वैल्यू था, m का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया था, ये है u, एंड प्लस इंटीग्रेशन fy क्या था, n का पार्ट था, n क्या था, डेल u बाई डेल x प्लस fy। यहां पर एक मेन पॉइंट नोट करने के लिए, जो n की वैल्यू है, इसमें तो x y दोनों है, बट यहां पर क्या नहीं है, क्या नहीं है इसमें, हेलो, मेन चीज x नहीं है, मतलब n का वो टर्म, देखो n इज इक्वल टू दिस, n का वो टर्म जिसमें क्या नहीं है, x नहीं है, वो वाला टर्म है fy। सो इसको हम क्या लिखेंगे, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x ना हो, नॉट कंटेनिंग x, ये fy की जगह पे ये लिख दिया, मतलब n का वो टर्म्स है जिसमें x ना हो। जैसे सपोज n की वैल्यू है हमारे पास ये है एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई, सपोज n की वैल्यू ये है, तो ये n की वैल्यू इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है। सो fy की वैल्यू इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, ओनली y लिखेंगे। और अगर n की वैल्यू ये है तो इस जगह पे क्या लिखेंगे, 0, मतलब वो पार्ट, जैसे इसमें भी x है, इसमें भी x है, बिना x वाला पार्ट क्या बचा है, कुछ नहीं, मतलब 0। और अगर यहां पर ऐसा आ जाए साथ में वाई स्क्वायर, तो इस जगह पे क्या लिखना है, fy की वैल्यू y स्क्वायर होगा, बस उतना ही लेना है।
क्लियर है? सो ये दिस तो हो गया, u की वैल्यू लिख दिया, इस वैल्यू को लिख दिया, और ये dy इक्वल्स टू कांस्टेंट. दिस इज द फॉर्मूला. ये है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ऑफ m dx plus n dy equals to 0 is given by this. ये है सॉल्यूशन. इसको याद रखना है. ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला टोटल इज ए फॉर्मूला. सिंपल फॉर्मूला एकदम. कैसे याद रखना है? इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई. एन डी वाई नहीं है, एन का वो टर्म जिसमें एक्स नहीं है, ऐसे करके याद रखना है. क्या सॉल्यूशन होता है? इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल्स टू सी. बिकॉज यहाँ पर वाई से रिलेटेड आएगा, इसलिए वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा. और पर ये इसको एम डी एक्स करना है, वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, और राइट साइड में कांस्टेंट रख देना है. ये सॉल्यूशन होगा अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो. सॉल्यूशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय दिस. सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन. एग्जैक्ट इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय दिस. और एग्जैक्ट प्रूफ करने का मतलब पहले ये टेस्ट कर लेना है. अगर ये इक्वल है तो एग्जैक्ट है. अगर एग्जैक्ट ये इक्वल आ गया, एग्जैक्ट हो गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है इससे. यही सॉल्यूशन. क्लियर है? हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? यही तो मेन पार्ट था. आप अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, है ना. ये सेकेंड यूनिट बहुत सबसे शॉर्ट जो है और सबसे इजी जो है सेकेंड यूनिट है. ओके, थर्ड यूनिट भी इजी है बट वो थोड़ा लेंथी है, बट ये इजी है. फर्स्ट यूनिट में जो टाइम लगा ना, फर्स्ट यूनिट में जो हम लोग का टाइम लगा वो उतने टाइम में दोनों यूनिट हो जाएगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों यूनिट हो जाएगा उतने टाइम. 3-4 लेक्चर लगेगा बस ओनली ये सेकंड के लिए. सो टेक सेकंड क्वेश्चन, है ना. एक मतलब क्वेश्चन लेते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा. ये ढेरों क्वेश्चन होते हैं, है ना. सॉल्व cos x tan y plus cos x plus y dx equals to sin x. बिकॉज एग्जैक्टनेस चल रहा है, कोई भी हर डिफरेंशियल इक्वेशन को ना आइदर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो उस फॉर्म में लिख लेना है, और फिर m को लिख लेना है, n को लिख लेना है. सो हियर m इक्वल्स टू सॉल्यूशन m इक्वल्स टू हियर m इक्वल्स टू क्या है? Tell me, m equals to cos x tan y ना, प्लस cos x plus y. cos x plus y. बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टनेस का चल रहा है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में लिख के फिर m की वैल्यू और n की वैल्यू लिखना है. यार m इक्वल्स टू दिस एंड n इक्वल्स टू क्या है? sin x sec square y. sin x sec square y plus cos x plus y. cos x plus y. sin x sec square y plus cos x plus y. m equal to this, then n equal to this. Because the given equation is of the form m dx plus n dy equals to 0. ये लिख लेना है कि given comparing the given differential equation with m dx plus n dy equals to 0. तो राइटिंग मेथड अच्छा रखना है ना. यहाँ पर जल्दी सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट लिखेंगे m इक्वल्स टू हो गया, n इक्वल्स टू हो गया, तो टेस्ट करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं. वी सी दैट del m by del y इक्वल्स टू क्या होगा? del m by del y इक्वल्स टू y के रेस्पेक्ट में ना इसका पार्शियल डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव. cos x तो कांस्टेंट रहेगा, tan का क्या होता है y के रेस्पेक्ट में? sec square y. cos x sec स्क्वायर tan cos sec स्क्वायर y प्लस यहाँ पर
y के रेस्पेक्ट में होना है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स प्लस वाई ना, y के रेस्पेक्ट में होना है तो cos का माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यही डिफरेंशिएशन किसका है, डेल एन बाई डेल एक्स का भी है। देखो n को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है ना, साइन एक्स का हो जाएगा cos और सेक तो सेक रहेगा, और यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना है, फिर वही आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई एंड 1। So del n by del y and del n by del x both are equal. Here we see that this implies given equation is exact differential equation. Exact differential equation है, therefore solution is given by, बस वो जो फॉर्मूला है आप उसको फॉर्मूला को लिखना है। क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट, एक बार फॉर्मूला को लिख देना है, एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n not containing x dy इक्वल्स टू c। ये फॉर्मूला एक बार लिख देना है, दैट इज क्या होना है, m मीन्स दिस cos x tan y प्लस cos x प्लस y dx, और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां क्या होगा, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n का वो टर्म जिसमें x ना हो, यही होगा ना। देखो यहां x इन्वॉल्व है इस टर्म में भी x इन्वॉल्व है, मतलब y बिना x वाला टर्म कुछ नहीं, मतलब जीरो से जीरो लिख दिया, इसकी वैल्यू कांस्टेंट लिखोगे तो उधर जाके सेट हो जाएगा, बट ये वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दो लाइन में सॉल्यूशन आ गया, एग्जैक्ट हुआ तो फॉर्मूला यूज किया। बोलो यहाँ इंटीग्रेशन क्या होना है, y को कांस्टेंट लेना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। हेलो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करो, ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x tan y, और इसका भी इंटीग्रेशन होना है विद रेस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट है, सो क्या होना है, cos का sin x प्लस y तो कांस्टेंट है, ये लीनियर फैक्टर है, विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा है, x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड होगा, बस हो गया। इसका भी इंटीग्रेशन sin x प्लस y, दिस इज इक्वल्स टू c, दिस इज सॉल्यूशन, फाइनल हो गया, ये सॉल्यूशन है। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस एग्जैक्ट अगर है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन में क्या करना है, एक बार इंटीग्रेशन करना है बस। सो mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख के m को लिखना है, n को लिखना है, ये दोनों टेस्ट करना है। इफ इक्वल देन एग्जैक्ट, अगर इक्वल है तो ही एग्जैक्ट है, नहीं तो नहीं। अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। सो अभी हमको ये सीखना है कि एग्जैक्ट अगर नहीं है तो एग्जैक्ट कैसे बनाया जाए, है ना। वी कैन reduce differential equation, we can convert differential equation. If it is not exact, then we can make it exact. But always possible नहीं होता है। इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, वो निकाल के मल्टीप्लाई करने से हो जाता है। जैसे शुरू में दिखाया था, एक क्वेश्चन में 1/x² से इंटू किया था और एक लेफ्ट साइड एग्जैक्ट हो गया था। उसी टाइप से कुछ फैक्टर फाइंड करना है जिससे अगर इंटू करें वो एग्जैक्ट हो जाए। और एग्जैक्ट शुरू में क्या दिखेगा,
डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं है तो ट्राई करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए कुछ, जिससे हम अगर इक्वेशन को इंटू करें, इंटू करने के बाद जो इक्वेशन का फॉर्म होगा उसके लिए फिर ये ट्रू हो जाएगा और एग्जैक्ट हो जाएगा, और एग्जैक्ट हो जाएगा तो सॉल्यूशन ये है। क्लियर हुआ? फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ। यस सर। अब ना एग्जैक्टनेस का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन रखा था इसमें। ओके, सो इसमें सेकेंड क्वेश्चन, आज लाइट प्रॉब्लम भी कर रहा है, यहाँ पर ब्लिंकिंग हो रहा है क्या स्क्रीन पे? हेलो? यस सर, थोड़ा बहुत हो रहा है। हाँ, वही लाइट प्रॉब्लम है। हाँ, ये क्वेश्चन थर्ड देखो, ये क्वेश्चन भी वही एमडीएक्स प्लस एनडीआई के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो ये टेल मी, आंसर बताओ फटाफट। ये भी क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व होने में 5 मिनट टाइम लगता है मैक्सिमम, ज्यादा नहीं लगता है। सॉल्यूशन ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है कि नहीं यार? m इक्वल्स टू व्हाट? m इक्वल्स टू क्या गिवन है? y स्क्वायर e टू द पावर x y स्क्वायर, y स्क्वायर e टू द पावर x y स्क्वायर। बिकॉज 12th क्लास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े ना, सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस फॉर्म, उसमें सिंपल टर्म होता है। यहाँ पर मिक्सिंग टर्म रहता है, साइन कॉस ई लॉग ये सब मिला हुआ रहता है, तो उस मेथड से पॉसिबल नहीं है, तो एग्जैक्टनेस से होता है ये। सो m की वैल्यू 4x³ प्लस 4x³ एंड n की वैल्यू n इक्वल्स टू व्हाट? n इक्वल्स टू 2xy e टू द पावर xy स्क्वायर, 2xy e टू द पावर xy स्क्वायर एंड -3y स्क्वायर, -3y स्क्वायर। सो ये इसका भी डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं ना, क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन, पार्शियली y स्क्वायर e टू द पावर xy स्क्वायर प्लस 4x³ del m by del y and del n by del x both are equal or not? ट्राई करो, बताओ इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, इक्वल है कि नहीं है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होना है विद रेस्पेक्ट टू y? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, बिकॉज दोनों में y है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन y स्क्वायर, सेकंड का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या होना है? e टू द पावर xy स्क्वायर इंटू क्या होगा बताओ ना, यहाँ क्या होना है? क्या लिखूं? 2xy ना प्लस एज इट इज रहेगा इसका डिफरेंशिएशन 2y e to the power xy square. e to the power xy स्क्वायर। अब सेम, अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखो यही हो रहा है क्या? यहां पर y के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, इसको x के रेस्पेक्ट में करना है, इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यही आएगा ना, आना है, करके देखो आ जाए। इसमें 2 है दोनों जगह पे, तो xy e to the power xy स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x को अगर x का 1 हो जाएगा, ये x के रेस्पेक्ट x एंड ये दिस, इसका टू टर्म्स बना के करना है, y तो एज ए कांस्टेंट रेट होगा। सो डिफरेंशिएशन करने से यही मिलने वाला है, सो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्ट हो जाएगा तो सॉल्यूशन बताओ, अभी बिल्कुल यही लिखना है, केवल यहां पर चेंजेस आना है। ये m दिया है, ये n दिया है, इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में किया, ये मिला। सेम वो x के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी यही मिलेगा। सो दोनों क्या है? इक्वल है, तो क्या हो गया? एग्जैक्ट हो गया। एग्जैक्ट हो गया तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है, तो यहां पर x की वैल्यू m की वैल्यू लिखना है।
ओके, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखो, मतलब एग्जैक्ट अगर हो जाता है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। सो m की वैल्यू लिखना है यहाँ पर, m कहाँ पर है, ये y स्क्वायर e टू द पावर x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, m की वैल्यू है। n में से वो टर्म लेना है जिसमें x ना हो, तो क्या होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन -3y स्क्वायर dy इक्वल्स टू c। बस अब यहाँ इंटीग्रेशन इजी रहता है, y कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन y कांस्टेंट x के रेस्पेक्ट में e टू द पावर समथिंग, ये जो भी है वो यही रहेगा, और डिवाइड किससे हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, y स्क्वायर से डिवाइड होगा तो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर xy स्क्वायर, सो e टू द पावर xy स्क्वायर। यही होना है कि नहीं, इधर देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, y कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होना है, e टू द पावर दिस इनटू x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा 1/y स्क्वायर, y स्क्वायर कैंसिल, ये होगा प्लस y कांस्टेंट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होना है, x पावर 4, x पावर 4/4 कैंसिल 4 माइनस यहां पर क्या होना है y q इक्वल्स टू c। दिस इज द सॉल्यूशन, हो गया, ये सॉल्यूशन आ गया। सो मेन थिंग इज व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री mdx प्लस ndy के से कंपेयर करना है। गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0, उस फॉर्म में है तो m की वैल्यू लिखो, n की वैल्यू लिखो, ये दोनों वैल्यू निकालना है। अगर इक्वल आ गया तो एग्जैक्ट आ गया तो डायरेक्ट सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला m की वैल्यू लिखना है और n वाला टर्म लेना है, इंटीग्रेट करना है, सॉल्व हो जाएगा और दिस इज द सॉल्यूशन। और इसको सिंपलीफाई करके लिखना है, यहाँ तो यही रहेगा, देखिए ये सिंपलीफाई है। ओके, अब जो मेथड आता है इसमें डिफरेंट टाइप का मेथड है। इफ इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट देन एक ऐसा फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करना है जिससे क्या इक्वेशन क्या बन जाए, एग्जैक्ट हो जाए, और वो फैक्टर उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो मोस्ट ऑफ द डिफरेंशियल, जैसे बेसिक डिफरेंशियल आर आल्सो गिवन इन द बुक में एक लिस्ट दिया रहता है कि इस टाइप से अगर सेटिंग कर सके। फर्स्ट देयर आर 4-5 मेथड्स फॉर फाइंडिंग एग्जैक्टनेस ऑफ फॉर कन्वर्टिंग ये इक्वेशन टू एग्जैक्टनेस। मीन्स जैसे अभी हम लोगों ने देख के आया था ना, अगर हमको ये सपोज x dy प्लस y dx इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। हेलो, ये देखो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, m है dx, n है dy, mds प्लस ndy के फॉर्म का ही है, बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि d ऑफ x y मींस व्हाट, एक बार इसका डिफरेंशिएशन एक बार इसका डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल x dy प्लस y dx। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है, ये अगर एग्जैक्ट है तो उसको हम ऐसे लिखा, और डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर x y आ जाएगा, उधर कांस्टेंट आ जाएगा, ये सॉल्यूशन है बस एग्जैक्टनेस। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी स्प्लिट इन पार्ट वाइज डिफरेंशियल्स, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना पार्ट वाइज d ऑफ समथिंग प्लस d ऑफ समथिंग ऐसा करके भी अगर लिख लोगे तो भी डिफरेंशियल हो जाएगा, बिकॉज d को बाहर कर देंगे, अंदर सब फंक्शन आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे d और इंटीग्रेशन खत्म, जो आया वो इक्वल टू कांस्टेंट, सॉल्यूशन। ये जो है फर्स्ट टेक्निक फाइंडिंग इंटीग्रेशन फैक्टर, और फर्स्ट टेक्निक इज व्हाट, बाय इंस्पेक्शन यू कैन जज, यू कैन रीअरेंज द टर्म्स। जो टर्म्स को ना रीअरेंज कर सकते हैं, अपने से टर्म को अरेंज करेंगे कि ऐसा कर लेते हैं तो d ऑफ समथिंग हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया और सॉल्यूशन आ गया। दिस बाय इंस्पेक्शन का मीनिंग ये होता है कि रीअरेंजिंग द टर्म्स को अरेंज करो कि टोटल डिफरेंशियल बन जाए किसी फंक्शन का,
या तो अपने से गेस कर ले कि किसी एक क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करे तो टोटल वो डिफरेंशियल बन जाए, डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन हो जाए। ये इंस्पेक्शन मीन्स अपने से जज करना है देख के। सो ऐसा होता है तो ये लिखते हैं। अब ये सपोज ये लिखा है y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं? क्यों अभी तो तुम लोगों को बताया था, इसको क्या लिखते हैं? डी ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई ना। सो इसको क्या लिखेंगे? देखो डी ऑफ एक्स वाई को ये लिख सकते हैं। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो अपने से ही इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। सपोज करो ये नहीं है, केवल ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है तो वाई एस वन बाई वाई स्क्वायर से इंटू कर दो, तो इसको हम ये लिख लेंगे तो टोटल डिफरेंशियल मिल गया। इसी टाइप से इसका भी होता है, एक लिस्ट है बुक में, यू कैन सी डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, इसका भी तो हो जाएगा। इसका फॉर्मेट कैसा होना है? एक तो पहले टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसका डिफरेंशिएशन होने का मतलब है y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होने का मतलब है एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस, क्या लिखो? केवल इसका डिफरेंशिएशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये होना केवल इसका डिफरेंशिएशन। किंतु उसके पहले टेन इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन होना है। तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस y बाई एक्स का स्क्वायर। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहां पर नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन भी हमको मिल जाए, इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो उसको हम ये लिख देंगे। क्लियर है? अब देखो यहां पर माइनस साइन है, यहां पर माइनस साइन है, बट प्लस साइन के साथ भी अगर एक क्वांटिटी लगा दी यहां पर, इसके नीचे अगर लगा दे एक्स वाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ डी ऑफ लॉग एक्स वाई। नॉट एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। क्या होता है लॉग में? लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1/x, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x वाई होगा, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ये यहां पर प्लस लगा है, मींस अगर ये क्वांटिटी मिले उसको हम ये लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ दिस। तो ये इंस्पेक्शन में काम आता है। कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें सेटिंग कर लिया और सब फट से सॉल्व हो गया, है ना। सो इंस्पेक्शन मेथड से और अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन फाइंड एग्जैक्टनेस। एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बना सकते हैं। किसी चीज से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से पता चला मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट हो गया, वही होता है जो फैक्टर होता है जिससे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एग्जैक्ट हो जाता है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आईएफ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े होंगे 12th में। बताओ क्या था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आईएफ क्या होता था? हेलो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 12th क्लास में पढ़े ना, उसका आईएफ क्या होता था? किसी ना किसी को तो पता होगा। हेलो, the power integration of b dy dx dy जो भी है ना, गुड, वही तो होता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बार भी पढ़ना है, वही है, एग्जैक्टनेस का एक छोटा सा पार्ट तो है वो, उसमें भी आईएफ बनता था, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बना के आईएफ सेट कर दिया, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी dx। अगर dy बाई dx में है तो, अरे dx बाई dy में है तो e टू द पावर इंटीग्रेशन पी dy होता है। ओके, सो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे, हाँ अभी टाइम है, बहुत टाइम है, अभी 2-4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। देखो वीक में 2 क्लास होता है और 2 आवर्स का इसीलिए क्लास रखे हैं, है ना। सो इसमें अभी एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एग्जैक्टनेस चल रहा है। कुछ दिख रहा है इसमें जो अभी मैंने इंस्पेक्शन फॉर्म में बताया था उसके हिसाब से? हेलो, यस सर। तो क्या कर सकते हो, क्या करें बताओ? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स dy ना, y dx माइनस
एक्स डी वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब dx एक्स क्यूब dx इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसमें दिख भी रहा है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन ये टारगेटेड एरिया तो बनता है, माइनस है मतलब नीचे कुछ आना चाहिए। अब इस टाइप के सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन सामने है तो mdx प्लस ndy के बारे में सोचेंगे तो पहले क्या आएगा, dx और dx को कलेक्ट कर ले एक जगह पे आ जाएगा, mdx हो जाएगा, m बन जाएगा y प्लस दिस और n बन जाएगा माइनस f। तो डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x नहीं होना है, वो तो श्योर है, वो इक्वल नहीं होगा, एग्जैक्टनेस नहीं दिख रहा है। बट ये कॉम्बिनेशन हमको पता है, कुछ कॉम्बिनेशन है 8-10 बुक में भी लिखा रहता है ना, एक लिस्टिंग है, तो इसको देखने से लगता है कि कुछ एग्जैक्टनेस बनाने के लिए कुछ करें, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अभी जो हमने बताया 2-3 बार बताया, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसको एग्जैक्टनेस कुछ नीचे होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए नीचे, मतलब 1/y स्क्वायर, ऐसा लग रहा है कि 1/y स्क्वायर से इंटू कर दे तो हो जाए, ऐसा लग रहा है ना। और साथ में अगर 1/y स्क्वायर का इंटू कर दे पूरे इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे y स्क्वायर आ जाएगा, ये तो बन जाएगा dx बाई वाई, यहाँ से y स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि 1/y स्क्वायर का इंटू हो रहा है, 3x स्क्वायर इंटू द पावर x क्यूब, वो भी तो टोटल डिफरेंशियल दिख ही रहा है ना। सो बाय इंस्पेक्शन यू कैन राइट we may take 1/y square as an integrating factor, integrating factor मतलब IF, okay, integrating factor we may take this। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का दोनों तरफ इंटू करना पड़ता है, सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट द गिवन इक्वेशन बाई IF we get, IF से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा इक्वेशन में, y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा इसके साथ, और वहां पर हो जाएगा ये 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, dx इक्वल्स टू 0, और इट कैन बी रिटन एज ऑल्सो, ये क्या होगा dx अपॉन y, और ये क्या है d ऑफ, कोई बताओ d क्या होगा, ये d, इसको d क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x क्यूब का d है ना, ये e टू द पावर x क्यूब का d है ना, इसको डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, e टू द पावर x क्यूब एंड x क्यूब को फिर करना है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे d है, यहाँ पे d है, सो exact differential equation you can write like this, d of x by y plus e to the power x cube equals to 0, okay, d of this is equals to 0, so by direct integrating, on integrating we get, क्या हो जाएगा, x by y plus e to the power x cube equals to c, so this is solution, हो गया, एग्जैक्टनेस बनाया और इसको डायरेक्ट सोल्यूशन हो गया, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है। इंस्पेक्शन किया हमने, को लगा कि इससे अगर इनटू करें तो बन जाएगा, और हो भी रहा था, सो हो गया, तो बाय इंस्पेक्शन यू कैन गेट आल्सो सॉल्यूशन। एग्जैक्टनेस हुआ यहाँ पर mds प्लस ndy इक्वल्स टू 0, और वो फॉर्मूला यूज नहीं किया, बट या ये दिखा कि इक्वेशन को d ऑफ समथिंग इक्वल टू 0 लिख पाया और इंटीग्रेट कर दिया, तो दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, so this is the solution।
क्लियर है? तो फर्स्ट मेथड क्या है? बाय इंस्पेक्शन. बाय इंस्पेक्शन वी कैन arrange the equation so that equation will be exact equation. Okay, second, and there are 4 types of finding IF. Second method for finding IF. IF फाइंड करने का टेक्निक है, 3-4 टेक्निक है. इसको याद रखना. मीन्स व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मीनिंग ये होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सामने आया तो कौन सा मेथड लगना है. बिकॉज देयर आर बहुत सारा है. पूरा अगर इंजीनियरिंग का मैं डिफरेंशियल इक्वेशन देखे तो कम से कम 100 टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. सो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का चल रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में अभी एग्जैक्टनेस से स्टार्ट हो रहा है ना. तो एग्जैक्टनेस से स्टार्ट हो रहा है. डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के गेस करना है कि कौन सा मेथड लगना है, कि सेपरेबल फॉर्म लगना है, कि होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म लगना है, कि एग्जैक्टनेस लगाना है, फिर कि लीनियर होना है कि नहीं होना है. सो हियर अभी अब क्या चल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट हो जाए तो सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत इजी रहता है. बट एग्जैक्ट अगर नहीं है तो एग्जैक्ट करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं कि उससे इंटू करे और एग्जैक्ट हो जाए. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फर्स्ट इंस्पेक्शन मेथड बताया. एंड सेकंड मेथड है, फर्स्ट हो गया बाय इंस्पेक्शन, सेकंड हो गया, थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ. सेकंड, IF equals to 1 upon mx plus ny. Third, IF equals to 1 upon mx minus ny. Fourth, IF equals to e to the power integration fx dx. fx equals to del m by del y minus del n by del x upon n, and IF equals to e to the power integration of fy dy. fy equals to del n by del x minus del m by del y upon m. mx plus ny is not equals to 0 and ये mx minus ny is not equals to 0. Equation is homogeneous in x and y. f1 xy y dx plus f2 xy x dy equals to 0. m dx plus n dy y equals to 0. ओके, अब सब लोगों को दिख रहा है? हेलो, सब लोग दिख रहे हैं, देख रहे हो ना? एक्टिव हो कि नहीं इधर? हेलो, Yes sir. ये मैंने क्या लिखा अभी? तो ये 4 स्टेप लिखा. 4 स्टेप मीन्स अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? जस्ट एम डी एक्स प्लस एन डी ओ इक्वल्स टू 0. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. इज स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है, सो हाउ कैन वी गेट द सॉल्यूशन? यू नो, फॉर्मूला पता है. अगर एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट है मीन्स हमको ये प्रूव करना पड़ता है कि ये और ये इक्वल होता है. और एग्जैक्ट अगर नहीं है, सो ये सब टेक्निक से क्या ढूंढते हैं हम? IF, बाय इंस्पेक्शन IF फाइंड करते हैं. IF फाइंड करते हैं और अरेंज भी करते हैं. इक्वेशन को ऐसे अरेंज करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ऐसा कुछ अरेंज करते हैं कि वो टोटल डिफरेंशियल बन जाता है. तो ये तो इंस्पेक्शन से अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया था. ओके, सपोज करो ये भी नहीं बन पा रहा है, सो IF किसको लिया जाए? IF मिल जाना मीन्स 50% सॉल्व हो गया. IF मिलने का मतलब उस क्वांटिटी से अगर इक्वेशन को इनटू कर दिया जाए तो एग्जैक्ट हो जाएगा. पहले एग्जैक्ट नहीं था, पहले ये दोनों इक्वल नहीं था, बट अगर इनटू कर दिया जाए IF से इक्वेशन को
तो वो एग्जैक्ट हो जाता है और ये दोनों इक्वल भी हो जाता है और डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाता है। बट आईएफ लेने का क्या क्या टेक्निक है, पहले तो ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसमें क्या है, mx, m की वैल्यू इक्वेशन में है, n की वैल्यू इक्वेशन में है, सो यू कैन फाइंड दिस कॉम्बिनेशन। mx प्लस ny की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जीरो नहीं होना चाहिए, तो 1/ms प्लस ny को एज ए IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी कैन टेक। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले सकते हैं किस केस में, व्हेन इक्वेशन इज होमोजेनियस। होमोजेनियस इक्वेशन पहले भी पढ़े हैं। होमोजेनियस इक्वेशन मींस m और n की जो वैल्यू है, ये जो mn की वैल्यू लिखते हैं, mn की जो वैल्यू लिखते हैं, ये क्या होना चाहिए, होमोजेनियस। होमोजेनियस मींस ऐसा xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होमोजेनियस है, 2 डिग्री का है। देखो इसका डिग्री दोनों मिला के इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, बट अगर ऐसा लिखेंगे तो ये होमोजेनियस नहीं है, ये होमोजेनियस नहीं है। ये डिग्री कितना हुआ, 1 और 1 2 डिग्री हुआ और ये डिग्री 1 हुआ, ये होमोजेनियस नहीं है। होमोजेनियस होने का मतलब ये दोनों का 2 है और यहाँ भी 2, ऐसा ये होमोजेनियस होता है। इसी टाइप से m और n दोनों अगर होमोजेनियस डिग्री का दिखे, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री जैसा भी, अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो एक बार इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसको ट्राई करेंगे। तो किस केस में, ओनली इन दैट केस व्हेन इट इज इन टर्म्स ऑफ सिंगल टर्म। अगर ये सिंगल टर्म आए, mx प्लस ny की जो वैल्यू है टर्म सिंगल रहेगा, बिकॉज सिंगल टर्म वाला IF ही काम आता है, उसी से मल्टीप्लाई करो तो इजीली सॉल्व होता है। अगर 2 टर्म आ जाएगा इसकी वैल्यू में, अगर 2 टर्म आ जाएगा तो फिर एडजस्टमेंट टफ होता है। तो सेकंड मेथड क्या है कि होमोजेनियस इक्वेशन हो और इसकी वैल्यू 0 ना हो तो 1/this करके इसको IF ले सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है, 1/mx माइनस ny, या प्लस लिया यहाँ माइनस लिया, अगर माइनस लिए और 0 ना आए और सिंगल टर्म आए तो भी हम इसको IF ले सकते हैं। किस केस में, जब फंक्शन ये इक्वेशन इस फॉर्म का हो, ये इक्वेशन इस फॉर्म का हो, मीनिंग mdx ndy नहीं लिखा हूं यहाँ पर, m के ये जो m है उसको इस फॉर्म में लिख सके, इसको n जो है उसको इस फॉर्म में लिख सके। मतलब क्या है, ये जो फंक्शन ऑफ xy into y dx, फंक्शन ऑफ xy into x dy, इस फॉर्म में अगर है इक्वेशन, if given equation is in this form, then you can use IF like this। इसको IF जैसा यूज कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और सिंगल टर्म है तो इसको भी IF ले सकते हैं। फिर उसके बाद जनरल, if this is not exact, ये अगर एग्जैक्ट नहीं है, ये अगर एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है, दैट मीन्स del m by del y, del n by del x की वैल्यू इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इनको डिफरेंस किया, दोनों को माइनस किया और n से डिवाइड किया, n से डिवाइड किया, तो इसकी वैल्यू ओनली x का फंक्शन आया अगर आता है तो। इफ वैल्यू ऑफ दिस इज ये फंक्शन ऑफ x अलोन, मतलब इसकी जो वैल्यू है केवल x का फंक्शन हो तो IF ये होता है, e इंटीग्रेशन fx dx। क्लियर है, IF तब ये लेना है। और फिर ये नीचे वाला कॉम्बिनेशन देखो, नीचे वाला कॉम्बिनेशन में किससे डिवाइड हो रहा है, m से, और ऊपर इसको भले पहले इसको भी लिख सकते हैं बट इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इस ऑर्डर में लिखने से क्या पॉजिटिविटी आती है इसकी। तो del n by del x माइनस del m by del y अपॉन m, इसकी वैल्यू अगर केवल y का फंक्शन हो, ओनली फंक्शन ऑफ y, देन यू कैन टेक IF लाइक दिस। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेने का टेक्निक है। अगर ऐसा ऐसा इक्वेशन हो तो वी कैन टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाइक दिस। तुम सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में ऐसा ऐसा ले सकते हैं जो बोला हम, क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो, ये टेक्निक है, याद रखना पड़ेगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, एग्जैक्टनेस है तो इक्वेशन सॉल्व हो गया, एग्जैक्टनेस नहीं है तो IF ढूंढना है। इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने का ये टेक्निक है। पहला इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये ले सकते हैं, इस फॉर्म का है तो ये ले सकते हैं, और अगर ये केवल x का फंक्शन है तो ये बना सकते हैं, अगर ये केवल y का फंक्शन है तो ये बना सकते हैं, और फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इनटू कर देना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर जो न्यू इक्वेशन बनेगा दैट विल बी एग्जैक्ट और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते। ओके, सो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन फिफ्थ किस फॉर्म का है? हेलो,
11:10 पे स्टार्ट हुआ था ना, अभी हाँ 1.5 घंटा नहीं हुआ। ओके, टेल मी कौन से फॉर्म में आता है ये जो इक्वेशन दिया हुआ है? हेलो, मतलब ये है कि ये है कि ये दोनों में से कोई नहीं है, कौन से फॉर्म में है? होमोजेनियस है ना। अब होमोजेनियस अगर है तो वो तो आप 12th वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, y इक्वल टू vx। और y इक्वल टू vx करना है कब करना है? अगर ये सिंगल टर्म मिला तो इसी को if बना लो, और सिंगल टर्म नहीं मिलेगा तो फिर y इक्वल टू vx वाला मेथड यूज करना है। सिंगल टर्म होना चाहिए, नहीं तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सिंगल टर्म होना चाहिए। सो लेट अस ट्राई टू if फाइंड if, यही वाला मेथड होमोजेनियस वाला ही है ये। तो if क्या होगा बताओ? यार m इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर एंड n इक्वल्स टू विथ माइनस साइन ना, सो 3x स्क्वायर वाई इंटू कर दे रहा हूं माइनस से, 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब, ये डेल m है और n है। We see that del m by del y is not equals to del n by del s। है क्या? del n by del s इक्वल है क्या? इसमें होगा क्या इक्वल? नो सर, नहीं है। तो अब हमको क्या ट्राई करना है? बिकॉज ये दिखना है, हम क्या देखे अभी? होमोजेनियस है, ये दिख रहा है ना, ये 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, होमोजेनियस इक्वेशन है। सिंस द गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन, so we can take integrating factor equals to 1 upon mx plus ny। also mx plus ny इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और सिंगल टर्म होना चाहिए। so mx करके देख लेते हैं इसमें ना, x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर इंटू x प्लस n 3x स्क्वायर y माइनस x क्यूब y इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर? एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई इक्वल्स टू क्या हो रहा है वैल्यू? देखो x ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा रहा, और ये दोनों मिलके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिंगल टर्म आज नॉट इज इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये है mx प्लस ny। ये मैंने ऐसा ट्राई किया, इसकी वैल्यू निकाल के देखा, बिकॉज ये होमोजेनियस है इसलिए, ये एक टेक्निक है इसलिए। ओके, देयरफॉर वी कैन टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज 1 upon mx plus ny, that is 1 upon x square y square। ये वी कैन टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये 0 नहीं है और सिंगल टर्म है, सो इस मेथड का यूज करना है। सिंगल टर्म है 1 upon x स्क्वायर y स्क्वायर, ये x स्क्वायर y स्क्वायर मिला, सो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्व करना इजी हो गया। अब क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। सो नाउ मल्टीप्लाइंग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट द इक्वेशन, और ये भी लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई थ्रू आउट द इक्वेशन बाई if इक्वल्स टू क्या है? 1 upon x स्क्वायर y स्क्वायर वी गेट। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट लिख दो उसी फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। ये तो if है, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर y, x स्क्वायर y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ,
तो एक ही बार में लिख के खत्म कर देते हैं। ये dx हो गया प्लस ये dy हो गया इक्वल्स टू 0। नाउ फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई होना है, तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन वाई माइनस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है एक तरह से देखे तो फिर एक्स स्क्वायर खत्म, वाई अपॉन वाई स्क्वायर 1 बाई वाई माइनस 2, क्या लिखूं यहां पर बताओ? 2 बाई x यहां पर एक्स क्यूब माइनस में है, सो पलट के भी लिख सकते हैं। अगर यहां पर प्लस लिखना है तो टर्म्स को आगे पीछे कर देना है ना। क्या हो जाएगा? 3 बाई वाई एंड फिर माइनस एक्स बाई एक्स बाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है ना, एक्स क्यूब को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, सो एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई ये हो गया बस डायरेक्ट। This it is exact, you can see which is exact equation। क्यों exact है? हो गया कि नहीं? अब देखो, अब न्यू एम ए हो गया, न्यू एन ए हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया। सो यहां से देखो डेल एम बाई डेल वाई कितना आएगा? डेल एम बाई डेल वाई y के रेस्पेक्ट में माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर आएगा ना, और y के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। और डेल एन बाई डेल एक्स करो, डेल एन बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, और एक्स के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 1 बाई वाई, यहां वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर। सो हो गया डेल एन बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल है, सो यू कैन राइट डायरेक्ट व्हिच इज एग्जैक्ट इक्वेशन। अब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया, हो गया, खत्म। दिख भी रहा है डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल है, एग्जैक्ट हो गया। सो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, वही फॉर्मूला लिखना है फिर से। क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई नॉट एन लिखना है, टर्म्स ऑफ n not containing x dy equals to c, और यहाँ y कांस्टेंट, ये फॉर्मूला लिखना है। सो सॉल्यूशन क्या हो गया? इंटीग्रेशन y m की वैल्यू, अब m में क्या आएगा? ये आएगा, ये 1 अपॉन y माइनस 2 बाई एक्स डी ऑफ एक्स, y कांस्टेंट y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n का टर्म्स जिसमें x ना हो, क्या होगा? हेलो 3 बाई c, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसका इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है, एक लाइन में लिख जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? x के रेस्पेक्ट में, y कांस्टेंट है, सो क्या होगा? x बाई वाई यहां पर माइनस 2 लॉग एक्स, यहां पर 3 लॉग वाई इक्वल्स टू सी, ये सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन। एक्स बाई वाई माइनस 2 1 बाई एक्स का लॉग एक्स प्लस 3 1 बाई वाई का लॉग वाई, सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर है? सो मेन थिंग इज व्हाट, जो इक्वेशन दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स पहले फाइंड करके देखना है, इक्वल नहीं है, सो एनी ऑफ द टेक्निक यू कैन अप्लाई फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ये फैक्टर मिलेगा उसी से मल्टीप्लाई करने से जो न्यू m और n बनता है वो क्लियर हो जाता है कि वो अगर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो एग्जैक्ट हो जाएगा, और सॉल्यूशन डायरेक्ट मेथड से आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला से। क्लियर है? 147 वो एक कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ अभी? क्वेश्चन 5 ना, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक करते हैं आज, है ना।
ये कौन से फॉर्मेट का है? टेल मी, कौन से फॉर्मेट का है? अभी जो मैं लिखा था ना फॉर्मेट पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जैक्ट, मेरे हिसाब से एग्जैक्ट तो नहीं है, उसी हिसाब से क्वेश्चन है. ओके, एग्जैक्ट दिस इज नॉट एग्जैक्ट. एम भी है, एन भी है, एग्जैक्ट नहीं है. अब कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है? जो मैंने 4 फॉर्मेट लिखा था ना, उसमें से इंस्पेक्शन हो गया, होमोजेनियस हो गया. होमोजेनियस तभी यूज करते हैं जब सिंगल टर्म होता है. फिर mx माइनस ny, वो जो स्पेशल फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट का दिख रहा है ना यहाँ पर. यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट है. बिकॉज प्रैक्टिस से समझ में आता है ये ना. यू हैव टू सॉल्व many questions, then you can get idea very fast. Okay, so here given the given equation is of the form. कौन से फॉर्म का है? अभी जो लिखे थे कौन सा फॉर्म था? f फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0. इस फॉर्मेट का है ना? दिख रहा है कि नहीं? कर सकते हैं ना? Yes, sir. ये देखो, एक जगह वाई डी एक्स भी दिख रहा है क्वेश्चन में, वाई डी एक्स भी दिख रहा है, एक्स डी वाई भी दिख रहा है, और साथ में एक्स वाई का फंक्शन दिख रहा है ना? एक्स वाई का फंक्शन मीन्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. एक और दूसरी जगह क्या लिखा है? एक्स वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. दैट इज वी कैन ट्रीट एट दोनों को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई. और एक वाई डी एक्स भी है और एक्स डी वाई भी है. तो इस फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट में हम लोग क्या लेते हैं? आई एफ 1 upon mx minus ny if mx minus ny equal to not 0. Here m equals to, m क्या है? Tell me, तुम ही लोग बताओ, m क्या है? m x dx का कोफिशिएंट xy स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वाई क्यू, एक्स स्क्वायर वाई क्यू एंड सेकेंड एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यू वाई स्क्वायर. क्लियर है? ये क्लियर है? हेलो, ये mn होगा. Yes, sir. mn होगा, बट ये फॉर्मेट का है. सो m इक्वल टू ये है, n इक्वल टू ये है. mx माइनस ny की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि मेथड हम जानते हैं कि इसी से बनाना है आईएफ. mx माइनस ny, इसको x से इंटू करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस ny एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब. ये इसको सॉल्व करें तो क्या मिल रहा है अभी इसमें? 3x क्यूब y क्यूब. हाँ, ये आ गया, ये दोनों कैंसिल. हाँ, 3x क्यूब वाई क्यूब नॉट इक्वल टू 0 एंड सिंगल टर्म. ये दिख गया, इक्वल 0 भी नहीं है और सिंगल टर्म भी है. 3x क्यूब वाई क्यूब. सो वी कैन टेक IF equals to 1 upon 3 x square y square. Okay. So multiply given equation by IF. We get. Multiply करके डायरेक्ट लिखो इक्वेशन. क्या बना है? इक्वेशन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं. अभी ये किससे? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करना हो रहा है. 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करना हो रहा है. हेलो सर 3x क्यूब y क्यूब. एक मिनट, ये m ये है ना, इसी को किससे डिवाइड करना है? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से. सो ये एक x कैंसिल हो जाएगा, एक y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो 1 upon 3 x क्यूब. सर क्यूब यहाँ X पर cube है sir.
अच्छा यहाँ क्यों, सॉरी यहाँ क्यों, ओके। अब क्या है, इसका इंटू होना है, ये m के जगह पे है, ये n के जगह पे है, m के जगह पे ये है, इसका इंटू होना है मीन्स इससे डिवाइड होना है। सो x स्क्वायर हो जाएगा और y हो जाएगा 1/3 x स्क्वायर y, 1/3 x स्क्वायर y, ये टर्म ये आया है ना। इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों तरफ, तो ये तो m dx n dy, यही तो इक्वेशन है, ये m है, m में इस 3x स्क्वायर y x की y क्यूब का डिवाइड हो रहा है, तो इसके नीचे आया वो, तो ये बना, इसके नीचे आएगा तो क्या बनेगा 2/3 x, 2/3 x, ये बन गया dx प्लस, और क्या बनना है, ये इक्वेशन बनेगा, इसी फॉर्मेट का तो इक्वेशन बनेगा, वी गेट दिस, इसका n में डिवाइड करें, किसका, इसी का, सो एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा x, ये y स्क्वायर, 1/3 x y स्क्वायर, 1/3 x y स्क्वायर माइनस, फिर इसी का, इसी में इंटू, x क्यूब खत्म, y स्क्वायर खत्म, 1/3 y, 1/3 y, ये डी हो। अब यहां पर देखो एग्जैक्ट है कि नहीं, ये इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0, ये y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा -1/3 x स्क्वायर y स्क्वायर, इधर x के रेस्पेक्ट में करो, ये 0 होगा, ये -1/3 x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ भी वही आएगा -1/3 x स्क्वायर y स्क्वायर, सो दोनों इक्वल है, सो एग्जैक्ट है, सो यू कैन राइट व्हिच इज एग्जैक्ट, व्हिच इज एग्जैक्ट, ओके। बस 2-3 मिनट्स मोर, सॉल्यूशन बताओ क्या होना है। सो इट्स सॉल्यूशन इज डायरेक्टली ग्राउंड, सो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या होना है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m क्या होता है, यही वाला जो लिखा हुआ है, 1/3 x स्क्वायर y माइनस 2/3 x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो क्या मिलेगा यहां से, -1/3 y dy इक्वल टू 0, बस ये है सॉल्यूशन। अब इसको एक बार इंटीग्रेट करके रख देना है, क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट है और इंटीग्रेट करना है, यहां पर क्या होना है, यहां पर x टू द पावर -2 ऊपर जाएगा ना, x टू द पावर -2, तो x टू द पावर -2 प्लस 1, x टू द पावर -1 में से 1/x हो जाएगा और -1, -1/3 xy, -1/3 xy, यहां पर x के रेस्पेक्ट में 2/3 log x, 2/3 log x, बिकॉज 1/x का log x होता है, 2/3 log x, यहां पर -1/3 log y इक्वल टू c, यहां पर c है, यहां पर c, सो दिस इज सॉल्यूशन। और इसको सिंप्लीफाई करते बनेगा तो सिंप्लीफाई करके रख देना, नहीं तो इस टाइप का रिलेशन, ये 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, उस 3 को उधर ले जाते हैं तो वो क्या है, न्यू कांस्टेंट बन जाएगा, 3c हो जाएगा, 3c को एक c1 लिख देना है, सो सिंप्लीफाई, इधर का माइनस भी हटाना है तो प्लस, दैट मीन्स इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना है ना तो माइनस इसको प्लस कर दो, ये सब माइनस है तो उधर एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस इंटू कर दिया तो सब प्लस हो गया, और ये यहाँ पर -c आ गया, और ये जो 3 है नीचे जो 3 लिखा है यहाँ -3c हो गया, तो -3c को एक ग्रेटर c या तो c1 लिख देते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसा लिख सकते हो 1/3xy प्लस 3 तो लिखना नहीं है, 1/xy प्लस 2 log x, या तो log x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस log y इक्वल्स टू c1, where c1 इक्वल्स टू क्या है, -3c,
सो दिस इज सोल्यूशन। ओके, सो सिंप्लीफाई करके लिख देना है, दिस इज सोल्यूशन। सो ये कौन सा फॉर्मेट यूज किया हम लोगों ने अभी, ये वाला फॉर्मेट। ओके, सो और दो टेक्निक है इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने का। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो अभी क्लोज करें ना। हेलो, Yes. बहुत Yes, sir. बहुत समय हो Thank you, गया। sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.